Yes, sir. Can anyone tell me Ohm's law? V is equal to IR. I into R. Okay. V is equals to I into R. We know that V is equals to I into R. I by R is correct or I into R? V is equal to IR. I into R. Very good. Very good. V is equals to IR. So what will be the formula for current then? V by R. V by R. Okay. So today we will learn about one principle uh, that is called as current division principle. Where we use that current division principle is when we use parallel resistances. Here, using that principle, if I is a current over here, we know that if we have two resistances R1 and R2, this current gets divided over here. Some part of the current, say I1, goes through R1 and some part of the current, say I2, goes through R2. Yes or no? Yes. Okay. So using this principle, we will find out the current flowing through R1 and current flowing through R2. Okay. If we know the total current I. Okay. So formula for this formula is also called as can someone read me for me? भैया पहले आप. हाँ भैया पहले आप formula. Okay. If we suppose that this current is a total property of this two brothers. If R1 and R2 are two brothers, ये दो भाई है और उनकी टोटल जो प्रॉपर्टी है उनके पिताजी ने छोड़ी है वो है I. तो अगर मुझे I1 को प्रॉपर्टी देनी है, मतलब I1 इज करंट फ्लोइंग थ्रू R1, तो मैं प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे करता हूँ? पहले तो टोटल प्रॉपर्टी ले लूंगा करंट मल्टीप्लाइड बाय, अब ये आर I1 जो है ये R1 में से करंट फ्लो हो रहा है. किस में से करंट फ्लो हो रहा है? R1 में से करंट फ्लो हो रहा है. तो R1 का भाई कौन है? R2. तो पहला चांस किसको देगा? R2 को. कहेगा भैया पहले आप, तो R2 ऊपर आएगा और इन दोनों का एडिशन नीचे आएगा, R1 प्लस R2. Similarly, using the same logic, can you tell me what will be the value of I2? Can someone tell me? I into R1 upon R1 Very plus good. R2. Very good. R1 upon R1 plus R2. समझ में आया? पक्का? Can you write it down? Then we will solve some numericals. Or take a screenshot. Done? Should I rub it?
Okay. Should I? Yes. Should I rub it? Yes. If I will write down the question over here now. I'll start with very simple question. 20 volt. 10 ohm. 5 ohm. Okay. I, total current I, then I1 and I2. Question is find out I1 and I2. Okay. We'll first find out I. What will be the current? What is the value of current? Voltage divided by resistance. Okay. Yes or no? Yes. Okay. So what is the voltage over here? We need to find out voltage. Voltage is given, that is 20 volt. We need to find out resistance. So first we will find out total resistance RT. I said total resistance RT is equals to, these two are parallel to each other. 10 and 5 are parallel to each other. So 1/10 plus 1/5. Okay, 1/10 plus 1/5. Instead of that, we will directly use one formula. If two resistances are parallel, we multiply two resistances and divide by addition of two resistances. You also remember this formula only. Multiplication of resistances divided by addition of resistances. What it will be? 50 by 15. And someone tell me what will be the value? 10/3. 3 point 3.33 recurring. 3.3. Okay, recurring. So we will take it 3.3. Okay, so value of resistance is 3.3. Therefore, current will be, what is the voltage? 20 divided by 3.3. Can someone tell me the value? Please. 20 divided by 3.3. 6.06. 6.06 ampere. Okay. So current is 6.06 ampere. Okay. Now we have find out I. Now we need to find out I1 by using current division principle or bhaiya pehle aap. So I1 is the current flowing through R1 or 10. So I need to write down the bhaiya of this 10. What is the bhaiya of this 10? That is 5 divided by 10 plus 5. Yes or no? So what is I? I is 6.06 into 5 divided by 15. Okay. So I1 is equals to 6.06 into 1 by 3. Am I right? Yes. So what will be the value? 2.03. 2.02? Yes. Yes. 2.0. Okay. Similarly, can you find out I2 for me? I2 will be, please tell me the formula. Can someone? Formula will be what? I2 for I2. Anyone please?
I into I into R1. अब now what is I2? I2 is the current flowing through 5. 5 का भाई कौन है? 10. यहाँ पे 10. कौन आएगा 10 ऊपर? upon 10. 15. 10 upon 15. 15. So it's 6.06 into 2 by 3. 4.02. 4.04 or 02. 04. Okay. We can tally this. How? If we add these two currents I1 and I2, it must be equals to I. Can we add I1 and I2? I1 is 2.02 plus 4.04. What is the value? 6.06. Okay, it's equal to I. Got it? Yes. I take a screenshot. Then I will change the values for the same numerical. Then you solve the same numerical. In that numerical, where I change the value. ये एक शॉर्टकट है जो हमें बहुत जगह यूज होता है. इट इज वन ऑफ द पार्ट जो बहुत जगह यूज होएगा हमें स्पेसिफिकली इन जेई एडवांस में. ओके, इतने आसान तो नहीं आएंगे, इससे मुश्किल आएंगे, लेकिन दैट इज वन ऑफ द पार्ट. ये हमें सीखना पड़ता है बेसिक. ये आपने क्लास में सीखा था 10th में, मुझे लगता है नहीं है ये. एनीवन? हो गया? स्क्रीनशॉट निकाल लिया आपने? वैल्यू चेंज कर दो. हाँ कर दो. Yes. 8 ohm and I will take 6 ohm. Voltage will be 40 volt. Can you find out? नोट कर लिया आपने चेंजेस? ओके. नोट कर लिया आपने चेंजेस? Yes. ओके. ये भी स्क्रीनशॉट निकाल लिया है? ओके.
I1 is equal to 1.46 and I2 is equal to 1.95. गुड. बाकी लोगों के लिए वेट करते 2-3 मिनट. आ गया सबका? कितने लोगों का आंसर आया? Can you see it? Yes. When the numerical is like this, current division principle is very useful. Otherwise, it's very difficult to find out the current from the 16 and 4. Okay. Last time that 10 ohm जो था ऐसा कोई resistance नहीं था, तो बहुत आसान था actually current find out करना. Current division is basically used. सभी इधर है? सबका concentration है? हाँ. ये बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही. बाकी है लोग? Yes, sir. 1-2 लोगों की आवाज आए. कितने लोग हैं? आर्यन ने हाथ ऊपर किया है और हाथ तो भी ऊपर करो भाई. शिल्पा ने किए हैं और शिल्पा फाले और महावीर ने किए और 3 अदर्स ने किए. चलो ठीक है. ओके. तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम सादे ट्रेडिशनल मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो. ओके. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट करंट, टोटल करंट I1 and I2. कैन यू सी इट? ओके. सो अगेन solution. What is total current I? Is equals to voltage divided by total resistance RT, yes or no? Am I right?
Yes, sir. Okay. So first we need to find out RT over here. Okay. So we will find out RT over here. Then put that value of RT over here in the equation number, equation of current. So what will be the RT? Look at here. These two resistances are parallel to each other and this 10 is series to that. Okay. So RT is 16 parallel to 4. This is a sign of parallel plus 10. Am I right? Yes. Okay. So how we find out parallel? 16 multiplied by 4 upon 16 plus 4. Multiplication of resistances plus addition divided by addition of resistances plus 10. Can you solve this and find out RT? 13.2. What? 13, 13.2. 13.2 ohm. 16 fours are 64. 64 divided by 20. That is 3.2 plus 10. Correct? Yes. सबको समझ में आ गया ये 13.2 कैसा आया? ओके. नाउ ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ. चाहूँ क्या? चाहूँ क्या? हाँ. Yes, sir. चाहूँ? देखो चाह रहा हूँ मैं भी. वोल्टेज का वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय आरटी का वैल्यू कितना था? 13.2. यू कैन यूज कैलकुलेटर फॉर वाइल, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो. प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 13.2. 7.57. 7.57 ampere. It is the value of current. Got it? So we find out one value, that is we find out I over here. How we find out? We find out voltage divided by total resistance. Total voltage is known, that is 100. Then we find out total resistance. How? These two are parallel. So 16 parallel to 4 plus 10 series में इससे. फिर parallel कैसे निकालते हैं? 16 multiplication of resistances divided by addition of resistances plus 10. तो ये हो गया I. ये हो गई उनके पिताजी की टोटल जायदाद. अब मेरे को I1 निकालना है. सो I1 क्या है फॉर्मूला, कोई बताएगा मुझे? टोटल I इंटू I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 16. तो 16 का भाई कौन है? वो क्या कहेंगे भैया? पहले आप. तो पहले कौन 4. जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4. तो व्हाट इज द वैल्यू? इज 7.5, सॉरी 7.57 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 20. कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत होशियार है, ये 4 और ये 4 कट कर देते. कैन वी कट इट आउट? 4 and 4 over here. No. Why? Because there's an Because in optation denominator between. 4 is. डिनोमिनेटर में एडिशन है, वी कैन नॉट कट इट लाइक दिस. ओके, वी नीड टू ऐड इट. तो ये कितना हो जाएगा फिर? 7.57 इंटू 1/5. Yes, sir. Which is 1.51. 1.51. ओके, करेक्ट है. मैं आप भरोसे पे भरोसा रखूं मैं तुम्हारे? हाँ. चलो ठीक है. So I1 is 1.51. Can anyone suggest me the short trick to find out I2 over here without using current division? Multiply it by. No. I need to find out I2 now. I have find out I1. I mean, a sir can subtract and Ah, yes. Very good. Very good. If I subtract it 1.51 from 7.57, I will get the answer. Okay, we will tally it now. Huh? Okay. Can anyone tell me the value of bhaiya pehle aap? I into सांगते वाटते. सांगते वाटते आता. आता सांगते वाटते.
सांगा ना बॉ. 16/20. 16/20. So what? 7.57 into 4/5. Am I right? What will be the value? Six 6.06. 6.06 ampere. Okay. If we do by the shortcut method, 7.57 minus 1.51. Same value. Okay. Got it? समझ में आया? So we find out all these three. I1 and I2. You want to take a screenshot? Please take a screenshot if needed. I will change the value. सर हाँ एक डाउट था. हमने हाँ 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल के टू डिवाइड ना, तो हाँ. हमें मल्टीप्लाई और ऐड क्यों किया? क्या बोला? आई एम नॉट गेटिंग. क्वेश्चन नहीं समझा. Ma'am, sir, in 9th standard, we had learned the formula that find registers in parallel. We divide them. We divide the registers. So why did we multiplied and added here? Okay. When we take a resistances in parallel, if I want to take a resistance in parallel over here for this, I need to do it like this: 1/16 upon 1/4. Okay, that is a traditional method. You must have learned about this. सही है? Yes. Okay. But if I go like this, means what it will be? It will be cross multiply 4 plus 16 upon 16 into 4. Am I right? Yes, sir. But it is the value of 1 upon RP. If I want to find out RP, I need to reciprocate it. उल्टा करना पड़ेगा इसको. Yes, sir. तो उल्टा क्या होगा? देखो, महसूस करने की कोशिश करो इसको. यही तो होगा. Yes, sir. Got it. महसूस हुआ क्या? Yes, sir. ओके. सो इसलिए मैंने बताया कि डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे. बच्चे क्या करते पता है? इसको आंसर समझ लेते हैं. दिस इज नॉट आंसर ना, दिस इज 1 अपॉन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन आरपी. तो मिस्टेक हो जाता है. ओके. एक मैं और ट्रिक बताता हूँ आपको, हमेशा याद रखना. अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, सुन रहे क्या सब लोग? ए ए बावलो, सुन रहे हो? हाँ तो बोलो. हाँ. हाँ, महसूस करो मैं जो बता रहा हूँ. जब दो रेजिस्टेंसेस होते हैं ना ऐसे, तो उनका जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है, वो दोनों में से जो छोटा है उससे भी कम आता है. हमेशा याद रखना. अगर तुम्हारा आंसर कहीं 4.5 या 4.2 आ रहा है तो गलत है. वो वैल्यू हमेशा जो दोनों में से छोटा है उससे भी छोटा आएगा, 4 से नीचे ही आएगा. तो यहाँ पे जैसे 3.2 आया था. समझ में आया? Yes, sir. चलो, ये समझा है न्यूमेरिकल. मैं वैल्यू चेंज कर दूं थोड़ा. हाँ. हाँ. 1/8 ओम. अब जरा पता चले, मजा आएगा. 1/16 ओम. A 5/4 ohm. You can use calculator. Okay. It's 37.5 volt. Can you find out now I1 and I2?
स्क्रीनशॉट निकाल लो। गॉट इट? हो गया स्क्रीनशॉट? आर्यन क्यों चला गया भाई? ओके Yes. Sir, 18.2. 18.2 किसका वैल्यू है? I1 का आई का वैल्यू क्या आया? 27.3. ओके एंड I2?
9.1. ओके, बाकी लोगों का आया क्या? पीयूष, महावीर, हर्ष, शिल्पा? पीयूष, हर्ष, महावीर? शिल्पा? इतना Sir, सन्नाटा what क्यों है? is the answer? हाँ, शिल्पा क्या हो गया? आपके आ गया आंसर? हाँ सर, बट बहुत बड़ा आया है. माय गॉड। ठीक है ना, आपको इसका प्रैक्टिस हो इसलिए मैंने दिया था। शारदा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिनका हो गया उनके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, दे दूं? Yes. Yes. दिख रहा है क्या? ये पहले जायदाद दो भाइयों में डिवाइड हुई, फिर और डिवाइड हुई, महसूस हो रहा है? अभी 4 भाई है. हाँ 4 भाई है. हाँ, बहुत भाई है अभी तो। नहीं, ये भाई नहीं है, ये तो चाचा है इनका। ये इन दोनों का चाचा है ये दोनों भाई है, ये दोनों मिला के फैमिली बनेगी कि भाई है। कोशिश करो। प्रैक्टिस में जितना खून बहेगा जंग में, मतलब प्रैक्टिस में जितना पसीना बहेगा जंग में उस खून उतना कम बहेगा, ऐसा कहते हैं।
तो प्रैक्टिस में जितना आप गलतियां करोगे ना, उतनी कम गलतियां एग्जाम में होती है। तो यहाँ पे गलतियां करनी है, लेकिन गलतियां रिपीट नहीं करनी है, बस नई नई गलतियां करनी है, फिर नए नए गलतियों से नई नई सीखना है अपने को। ये कोशिश करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो सब लोग। फिर जेई एडवांस में ऐसा आता है, इसके और इसके फिर 8 के भी लड़के आएंगे ऐसे ऐसे, समझा? थोड़ा सा थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? मैं ज्यादा जंप कर रहा हूँ फास्ट? हो गया? हर्ष, महावीर, सर आई एम नॉट श्योर, बट मैं मेरे वैल्यूज बताऊँ क्या? मैंने इसको एक अलग तरीके से किया है। बोलिए बोलिए। मुझे आप तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बता दीजिए पहले, टोटल रेजिस्टेंस का। मुझे टोटल रेजिस्टेंस मैंने 20 आया है, 20। गलत है। ओके। देर आर सम शॉर्टकट्स, मीन्स मैं बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आपको थोड़ा ट्राई करने देता हूँ, फिर बताता हूँ, ऐसा सोचा मैंने। कि मैंने लाइक वो जो हमने पिछले एग्जांपल में किया, मैंने उसे 2 बार किया, एंड देन फिर मैंने उसका जो आंसर है उसे ऐड किया। ओके,
नहीं, गलती हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, मैं हिंट देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो 4 और 4 के बाद ही 8 पैरेलल टू 8 है ना, उस 8 पैरेलल टू 8 का निकालना पड़ेगा, पहले 4 के साथ ऐड करना पड़ेगा, वो दोनों फिर वो 8 को पैरेलल है, सिर्फ 4 पैरेलल नहीं 8 को, वो जो है ना उसके बच्चे 8 पैरेलल टू 8 वो भी पैरेलल है 8 को, उनका कॉम्बिनेशन। सर रेजिस्टेंस 6.67 वोल्ट है क्या? नहीं, रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, 4। ये लड़के हैं या नहीं है, किसी की आवाज नहीं आ रही है। महावीर, हर्ष, पीयूष, महावीर तो लेफ्ट हो गया। चलो ठीक है।
कितने लोग हैं यहाँ पे? हर्ष, महावीर, शिल्पा, हम नहीं, ये 6 लोग आ जाए। पीयूष, दोनों पीयूष आ रहा है बेटा कुछ? यस। इसको क्या करते हैं हम लोग, आप लोग अगर कोई ऑफलाइन क्लास लेंगे ना, तो मैं और इसको डिटेल में ये करूंगा थोड़ा सा। एक्चुअली आज बहुत कम लोग आए हैं। आज क्या है तो नहीं स्पेशल, आज गरबा खेलने गए हैं शायद। शारदा, हो रहा है क्या? सर मुझे गलती नहीं समझी मेरी, मैंने ट्राई किया, हाँ। मुझे चलो फिर मैं आपको बता देता हूँ। चलो लाइक यहाँ पे देखो सब लोग। चलो मैं बता देता, एक ट्रिक बताता हूँ, फिर से महसूस करना है इसको। क्या करना है? पीयूष, ए पीयूष, पीयूष, महावीर, कोई है? पीयूष, आवाज ही नहीं दे रहे, चालू करके चले गए शायद से। ए पीयूष, दोनों पीयूष, महावीर, हर्ष। सर महावीर ने समीक्षा। अच्छा, ये महावीर दिख रहा है मुझे इसलिए कभी से मैं, हाँ समीक्षा, समीक्षा हो आप? ये पीयूष भी फिर पीयूष नहीं है क्या? पिताजी का नाम है शायद। चलो ठीक है, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। शारदा ने बहुत ट्राई किया। देखो मैं जो एक ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना भी इसको, ठीक है? जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में और दोनों सेम है, तो जो इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों का, ये हमेशा या इसका हाफ होगा। करके देख लो क्या होगा इसका इक्विवेलेंट। 8 × 8 अपॉन 8 + 8। देखो करके क्या होगा। 4। 4। तो हाफ होगा। समझ में आया? अगर दो रेजिस्टेंसेस सेम है एक दूसरे को पैरेलल, तो इक्विवेलेंट जो है उसका हाफ आएगा। करेक्ट? तो इसको आपको सॉल्व करने, वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 8 और 8 का पैरेलल है, तो इसका आएगा हाफ, मतलब 4। फिर ये 4 और ये 4, इन दोनों का कितना हो जाएगा? 4 + 4 सीरीज में 8। 8। फिर ये 8 और नीचे वाला 8 कितना हो जाएगा? पैरेलल हो जाएंगे वो, 8 × 8 फिर से। कितना? 8 × 8 अभी बताया मैंने, दोनों अगर सेम है तो। अरे बताओ, 8 × 8 है। कहाँ गए शारदा? सर 8 आएगा, 4 नहीं आएगा, ना, 4। 8, हाँ 4 आएगा ना। समझ में आया ना? तो ये हो गया 4 टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट कितना आया? टोटल करंट 32/4 कितना आया? 8 आया। 8 एम्पियर। ओके। अब ध्यान देना, ये भी 8 है और ये भी 8 है ना? और 8 एम्पियर करंट है, तो दोनों में तो सेम ही डिवाइड होगा ना करंट, दोनों सेम है तो। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर करंट का वैल्यू 8 है और ये दोनों भी 8 है, मतलब इधर साइड में I1 का वैल्यू भी 4 आएगा, 4 एम्पियर। और ये I2 भी क्या आएगा? 4 एम्पियर। कोई दिक्कत? थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो? यस सर। अब ये जो I1 है, ये जाके I3 और I4 हो जाएगा। ये I1 जो है, इसके बच्चे है ये I3 और I4। लेकिन दोनों में सेम डिवाइड होगा, क्योंकि ऊपर भी 8 नीचे भी 8। तो 4 को अगर सेम डिवाइड किए तो ये आएगा 2 एम्पियर, ये भी आएगा 2 एम्पियर, I4 भी 2 एम्पियर। समझ में आयो? ओह यस सर। हाँ, मतलब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा वो जुबानी। तो ऐसे होता है कि यही एडवांस में अपने को कंसेप्ट अगर पता है फिर ना I1 का कंसेप्ट। क्या होगा? क्या बोला? I1।
I1 4 आ गया, I2 भी 4 आ गया, फिर I1 यहाँ के डिवाइड हो गया ना I3 और I4 में। ये I1 जो है इसको अपने पप्पा से जायदाद मिली 4 एम्पियर, फिर ये अपने बच्चों में बांटेगा I3 और I4। हुआ क्या? Yes, sir. तो जेई में ऐसा होता है कि अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो बहुत बार बहुत आसान होता है, न्यूमेरिकल दिखने के लिए बहुत मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पे इसको और डिवाइड कर दूं दो इसमें, तो आप फिर से करंट निकाल पाएंगे 1 एम्पियर। ऐसा लगेगा बाप रे कितना मुश्किल सवाल है, लेकिन बहुत आसान है वैसे। समझ में आया? अरे हाँ तो बोल दो। Yes. ओके ठीक है, एक आधा मुश्किल सवाल दे दूं फिर आप सॉल्व करते रहो, फिर हम आज स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि आज बहुत ही कम बच्चे आए हैं। आज मतलब हर टाइम में 50-60 होते हैं, आज तो 4-6 ही बच्चे हैं, 4 ही बच्चे हैं शायद, 4-5। वो भी आंसर नहीं दे रहे, मतलब 2-3 ही लोग हैं। एक दे दूं मैं सवाल? अब ये ओम ओम है सब, हाँ? याद रखना। हर रेजिस्टेंस में से करंट फाइंड आउट करना है, 10, 20, 30, 15, 40, सारे रेजिस्टेंस में का करंट फाइंड आउट करना है। कर पाओगे? स्क्रीनशॉट निकाल लिए? स्क्रीनशॉट निकाल लिए? हाँ ना, कुछ बोलो।